السلام علیکم ناظرین، کشمیر بلیٹن کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز۔ ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کیا بارامولہ کا دورہ، تعمیری پروجیکٹس کا کیا افتتاح، کہا کشمیر کے دیگر حصوں میں بھی انٹرنیٹ کیا جائے گا بحال۔ دیگر مرکزی وزراء کا دورہ جموں کشمیر جاری، سری نگر، گندربل اور رامبن میں اجلاسوں کا کیا گیا اہتمام۔ کانگریس کے قائدین نے ملک کو جوڑنے کا کام کیا، لیکن آج حکمران پارٹی توڑنے کا کام کر رہی ہے، جی ایم ایل کی بی جے پی پر تنقید۔ جموں میں سبھاش چندر بوس کی یاد میں نکالی ریلی۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی کے کیے جا رہے ہیں وسیع تر بندوبست، مرکزی وزراء کے دورے اور یوم جمہوریہ کے پیش نظر فورسز ہیں الرٹ۔ مزید تازہ برف باری کے محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی، بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر کئی ایک حصوں میں احتجاج۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ کشمیر کے باقی اضلاع میں بھی انٹرنیٹ خدمات بحال کر دی جائیں گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر میں جاری عوام رابطہ مہم کے تحت مرکزی وزیر برائے مواصلات، قانون، انصاف، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی روی شنکر پرساد نے جمعرات کے روز بارامولہ میں کئی ایک تعمیری پروجیکٹس کا افتتاح انجام دیا ہے اور سنگ بنیاد بھی رکھے۔ اس موقع پر انہوں نے عوامی وفود سے ملاقات کی اور افتتاحی تقاریب کے موقع پر منعقدہ جلسوں کو بھی مخاطب کیا۔ روی شنکر پرساد نے بارامولہ میں انڈور اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب کے دوران یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وادی کے بعض اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات بحال کی گئی ہیں اور دوسرے اضلاع میں بھی مرحلہ وار طریقے سے انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیں جموں کشمیر جا کر یہاں کی ترقی کے لیے کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کو بروئے کار لا رہی ہے۔ واضح رہے روی شنکر پرساد نے گزشتہ روز سری نگر میں بھی بعض ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح انجام دیے تھے۔ خیال رہے 36 مرکزی وزراء جموں کشمیر کے لیے مرحلہ وار طور پر دورہ کر رہے ہیں، جس کے تحت وہ جموں کشمیر کے خصوصی موقف یا دفعہ 370 کے خاتمے سے متعلق لوگوں کی شعور بیداری بھی کریں گے۔ ہمارے پردھان منتری جی نے، نریندر مودی جی نے سارے منسٹرز کو کہا کہ آپ لوگ جموں کشمیر جاؤ اور وہاں وکاس کے لیے کوشش کرو۔ کل میں شری نگر میں تھا، وہاں میں نے آل وومن پوسٹ آفس کو انوگریٹ کیا، جی پی او میں آئی ٹی کے انکیوبیشن سینٹر کو انوگریٹ کیا نوجوانوں کے آئی ٹی ایکسپوجر کے لیے، اور نائلیٹ میں 2 ہاسٹل کو فاؤنڈیشن لے کیا۔ کشمیر کے صرف جموں کشمیر کے 350 وکیل نوٹری بنائے جائیں گے، یہ بھی گھوشنا کیا، اور ایک انکم ٹیکس کا ٹرائبونل کا ایک یہاں پر سرکٹ بینچ بھی آئے گا۔ آج جب میں بارامولہ آیا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس انڈور اسٹیڈیم کو انوگریٹ کر کے۔ میں پورے ایڈمنسٹریشن کا، اسٹیٹ گورنمنٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں، بہت بڑا کام ہوا ہے، اور یہاں کے بچوں کے چہرے پر میں نے خوشی اور نور دیکھا ہے، بہت ہی بڑھیا ہے۔ یہ جو ہمارے بارامولہ کے بچے ہیں ان کے اندر نیشنل لیول بڑے کھیل کھیلنے کا جذبہ ہے، اور فاروق صاحب میرے بغل میں ہیں، میں نے ان سے بھی آگرہ کیا ان بچوں کو پورا اوسر ملنا چاہیے۔ اور ایک ہماری جو بیٹی تھی وہ باسکٹ بال یا والی بال میں انٹرنیشنل گیم کھیل چکی ہے، تو ہم اس کی بھی چنتا کریں گے۔ آپ لوگ کو بہت بدھائی، بہت بہت دھنیہ واد۔ سر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ سر، ڈیولپمنٹ تو ضروری ہے لیکن انٹرنیٹ اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، وہ بھی دیکھیں گے، کافی جگہ کھلا ہے وہ بھی کریں گے۔ اور اپنے دورے کے موقع پر مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں محکمہ ضلع ترقیات بارامولہ GNHU کے بشمول
مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ اس اجلاس میں سول سوسائٹی سے وابستہ شخصیات اور مختلف عوامی وفود کے نمائندے موجود تھے۔ بارہمولہ دورے کے موقع پر روی شنکر پرساد نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت منعقد کیے گئے پروگرام میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء میں مختلف انعامات بھی تقسیم کیے ہیں۔ روی شنکر پرساد نے یہاں منعقدہ نمائش کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ At least 30-40 times in various parts of J&K. Sophomore sub-year is one. جب میں کو انوگریٹ کرنے گیا تھا تو اتنی خوشی تھی اور ہم نے کہا کہ جتنے آپ کے پوسٹ آفس کے فیمل امپلائیز سب کو بلائیے. 2-3 power projects. Major. Sir, we were commissioned, sir. We have LOC site, which is. ایک اچھی خبر ہے کہ بارہمولہ has improved. لاکھوں روپیہ جموں کے سرکار کا رجسٹر آف سینسر اور مرکزی مملکتی وزیر برائے داخلہ امور جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے 80,000 کروڑ روپے مرکز کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ کشن ریڈی نے گندربل میں ایک جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جموں کشمیر کی عوام کی ترقی کے لیے 80,000 کروڑ روپے کا پیکج جاری کیا گیا۔ واضح ہے کہ وزارت داخلہ امور کے مملکتی وزیر کشن ریڈی نے گندربل میں کئی ایک تعمیری منصوبہ جات کا افتتاح انجام دیا ہے۔ کشن ریڈی نے گندربل میں پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اسکیم کے تحت مختلف پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا اور تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ کشن ریڈی بدھ کے روز گندربل پہنچے۔ کشن ریڈی نے گندربل میں جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح حیدرآباد خوبصورت ہے ایسے ہی انہیں گندربل پہنچنے کے بعد یہاں کی ملے تہذیب و تمدن کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ احساس انہیں ہو رہا ہے کہ آخر انہوں نے اس خوبصورت گندربل میں جنم کیوں نہیں لیا۔ اس موقع پر جلسے میں حصہ لینے والوں لوگوں کو مرکزی وزراء کے دورے پر اپنے ملنے جلے رد عمل انہوں نے دیے ہیں۔ 13.21 کروڑ روپے ان اہم پروجیکٹوں پر the chief guest جناب جی کشن ریڈی جی جو ہے اور پوری ٹیم کی طرف سے یہاں اس جناب شلیم کبرا جی اور ان کے ساتھ ہیں آج اور تمام حضرات جناب جی کشن ریڈی جی ان کے ہمراہ ہیں ایڈمنسٹریٹر گورنر جو روڈ لینڈ ہے وہ 80,000 کروڑ کا پردھان منتری جی کا ایک پیکیج ہے جموں کشمیر کے جنتا کے وکاس کے لیے۔ اس پیکیج کے بارے میں بھی ہم ریویو کریں، اس پیکیج کے بارے میں بھی آپ سب لوگوں کو بتانے کے لیے نریندر مودی جی ہمیں آدیش دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کیسا حیدرآباد ہے، کیسا گندربال، کتنا سندر ہے گندربال، ہمارا حیدرآباد کیسا، اس میں اگر میں کیوں جنم نہیں لیا ایسا میں سمجھتا ہوں۔ اتنے ایک اللہ ہو، بھگوان ہو، کرسٹ ہو، اس میں ہر جگہ میں دکھتے ہیں۔ ایسا سندر ہے، اس دیکھنے کے لیے لوگ کروڑ روپے کر کے دیکھنے کے دوسرا دیش۔ یہ سمجھو ایک قسم کا جس طرح بیک ٹو ولیج کام کر رہا تھا، یہ بھی مرکز کی طرف سے ایک قسم کا بیک ٹو ولیج جیسا ہے۔ بہت بڑھیا کام ہے یہ۔ اگر ہمارے مرکز کے منسٹر صاحبان خود بذات خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں اور گھر گھر پہنچیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت فائدہ ہوگا لوگوں کا۔ اور اسی سے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی لوگوں کے پاس پہنچ جائے گی، وہی گورنمنٹ کامیاب بھی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ پچھلی بار بھی ڈیلیگیشن آئی تھی تو اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں بالکل۔ کون سی ڈیلیگیشن؟ جن سے پہلے جو آئی تھی یہاں تو پہلے ڈیلیگیشن جو آئی تھی وہ یورپین ڈیلیگیشن تھی، وہ انڈیا کی ڈیلیگیشن نہیں تھی۔ مرکز سے جو ڈیلیگیشن آئی ہے گاندربل کی عوام اس کے لیے امید رکھتی ہیں کہ آج ان کے سارے مسائل ہوں گے، کیونکہ پچھلی حکومت نے یہاں پہ جو بھی کچھ کیا وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ آج کی جو حکومت آئی ہے مرکز کی حکومت کے طرف سے یہ ڈیلیگیشن آئی ہے اور یہاں کی لوگوں نے ایک امید ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان کے سارے مسائل حل ہوں گے۔
साथ हमारे अपने मसले मसाइल हैं, तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे खासकर जो पंचायत हैं, पंचायत के अंदर जो BDCs वगैरह इनके अपने जो मसले मसाइल हैं ये भी हल होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम सारे यहाँ पे आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं हमारे सारे मसले हल होंगे। और महकमा आयुष के ममलकती वजीर यसु नायक ने श्रीनगर में 3 अमृत स्टोर्स का SMHS और स्कीम्स अस्पतालों में इफ्तिताह अंजाम दिया है। उन्होंने श्रीनगर स्टेडियम में 3 फ्लूड लाइट्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले वफूद ने उनसे मुलाकात की है। Stadium in Srinagar has been completed at a cost of ₹50 lakhs. Amrit, which stands for affordable medicines and reliable. Sir, under your kind leadership, first I will deal with the health sector. और आयुष मंत्रालय जम्मू कश्मीर में तंदुरुस्ती के सेवा में सुधार लाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। हम खास तौर पर सभी गांवों में तंदुरुस्ती की ऐसी व्यापक बुनियादी सेवा प्रदान करना चाहते हैं जहां न केवल एलोपैथी इलाज बल्कि आयुष की अलग अलग किस्मों के इलाज मिल सके। हम चाहते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को अपनी मर्जी और ज़रूरत से मुताबिक किफ़ायती भी इलाज मिले। पिछले 20-30 वर्षों में हमने देश के आवाम में सर अब्दुल हमीद बजाड़ रंगदार करना था। जी 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 हम अपनी डिमांड्स लेकर आए। हमें उम्मीद है कि हमारी डिमांड्स हल हो जाएंगी। क्या डिमांड्स है सर? नंबर 1 पे हमारी डिमांड्स ये है कि हमें साधना टेंडर होनी चाहिए। तो दूसरा हमें ट्रैवल जो हमारा आज तक ट्रैवल गुमशुम होता रहा वो यानी उसमें ये भी कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तो तीसरा हमारे इलाके में यानी आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब शेलिंग होता है तो पूरे गोले वहीं बरते हैं। तो हमें मुर्चे होने चाहिए। सर वो जब यानी उनको वोट ज़रूरत होते थे उस वक्त वो हमें कहते थे कि भाई आप हमें वोट दे दो कि भाई जब हमें कुर्सी मिलेगी हम आपको ये काम करेंगे। जब कुर्सी मिलती थी उसके बाद मिलती नहीं थी। तो सर हमें इसमें 50% उम्मीद है कि भाई अगर ये काम यानी जो हमारी डिमांड्स हैं तो पूरे करेंगे। हम उनका साथ देंगे। अहमद ठाकुर कहाँ से? लसजन से। हमारे कुछ गांवों के मतलब मसाइल थे जिसमें ड्रेनेज था, वाटर लॉगिंग हो रहा था, स्कूल की प्रॉब्लम है, मतलब अस्पताल में मतलब दवाइयाँ नहीं मिलते हैं, डॉक्टर वक्त पर नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे, उन्हीं के लिए हम यहाँ आए थे। मतलब शिकायत तो हमने की इनके सामने, मतलब जो हायर अथॉरिटी जहाँ पे है उनके सामने हमने शिकायत की। अब क्या होगा आगे उस पर उसका मदावा होगा कि नहीं होगा वो तो आगे वक्त ही मतलब सब बताएगा। वहाँ मसला हमारा हल हुआ होता तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। आज नहीं, वो 1947 से ही ठीक तरह से काम नहीं करती थी। अगर करती होती तो फिर लोग ये देखने को नहीं मिलता होता। जो ये सब कुछ हमने आजकल देखा है ये नहीं मिलता होता देखने को अगर इन्होंने कुछ किया होता। अब आप ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मिली हैं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने आपकी शिकायत सुनी है, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इन मसले को हल करने में। उधर मरकजी ममलकती वजीर तेली ने रामबन का दौरा किया है। अपने दौरे में उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल कांथी के बशमूल कई एक दिगर तामीरी मनसूबाजात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रामबन के सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अहदेदार मौजूद थे। मुझे कहा गया था कि हाई सेकेंडरी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की उद्घाटन करना है और आपको जाना है, उसी को लेके आया था और आप लोगों को मालूम है उद्घाटन हो गया है और इसी को लेके एक पब्लिक मीटिंग रखा गया था। और हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ लोगों को मिलना चाहिए और ज़रूर मैं इस विषय को मैं दिल्ली में रखूँगा कि यहाँ की रोड की भी हालत बहुत ख़राब है।
उधर शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे को महज एक दिखावा करार दिया। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मनीष सहानी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि ये मरकजी सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। मुंतखबा और चुनिंदा लोगों से उन दौरे में मुलाकात की जा रही है जो अवामी क़यादतें हैं, उनको दरकिनार रखा गया है। उन्होंने मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे को खुद अपनी और आवाम की आंखों में धूल करार दिया। बिल्कुल, हमने पहले भी बताया था कि ये जो दौरा कर रहे हैं ये अपनी ही पीठ थपथपाने वाला काम हो रहा है। निर्धारित लोगों से मिल रहे हैं, प्लान लोगों से बातचीत की जा रही है। जो जनता की आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार रखा जा रहा है। यानी एक तरह से जनता की और अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आज तक जब कभी इलेक्शन होते हैं, मोदी जी अब अपने जान चुके हैं, बीजेपी को पता लग गया है कि उनका दिल्ली में भी क्या हाल होने वाला है। इसीलिए 36 मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जबकि उनको व्यस्तता उनकी होनी चाहिए दिल्ली के अंदर जहां पर चुनाव चल रहे हैं। तो ये बेफालतू के दौरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिवसेना का मानना है कि निर्धारित दौरे हैं और अपनी ही पीठ थपथपाने वाला और जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम हो रहा है। उधर बारामूला में मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद के दौरे पर मुकामी लोगों ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल पेश किए हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया है। दफ़ा 370 और 35A को बेअसर कर दिया गया है। ताहम 4 अगस्त के बाद से कश्मीर में कई महीनों तक गैर मुय्यना हड़ताल रही। वहीं कश्मीर में हनूज़ हुर्रियत पसंद और दहली नवाज समझे जाने वाले सरबराह सरकर्दा सियासी कायदीन भी क़ैद-ओ-बंद से दो चार हैं। ताहम मरकज़ की जानिब से इस तरह के दौरे पर आवाम और सियासी हलकों से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ये कि कश्मीरियों के साथ जो अभी एक वादा किया गया था, जो वादा था कि 370 के बाद जो एब्रोगेशन के बाद ही करप्शन फ्री निज़ाम होगा, बेरोज़गारी नहीं रहेगी, तरक्की होगी, और उस वादे को उस वादे पर कितना खरा उतरेंगे ये बात मैंने आगे रखी। और जो बात बार बार नौजवानों की बात उठती है कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, तो कश्मीरी लोग इस चीज़ से नाराज़ नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं और बात कर रहे हैं। कश्मीरी लोग इससे भी नाराज़ हैं कि आखिर वो किससे बात कर रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या वो ग्रास रूट पे वो लोग हैं, क्या वो लोग जिनने जो इनसे बातें करते हैं और जिनको ये आगे मौके फराहम करते हैं। कि ये जो यहाँ पर मरकज़ी सरकार की डेलीगेशन आई, इससे पहले भी जो डेलीगेशंस थी वो भी यहाँ पर आए। मुझे नहीं लगता है कि कोई उसका ख़ास नतीजा निकला। अब जो यहाँ पर इतने सारे वज़रा हैं, मरकज़ी वज़रा है, उनकी डेलीगेशंस आई, हमने अपनी बात रखी। हमने 370 की बात की, हमने स्टेटहुड की भी बात की, हमने जो है कभी ये नहीं देखा है, हमने आज तक ये देखा है कि यूटीज़ को स्टेट बनते हुए देखा है, लेकिन एक स्टेट को यूटी बनते हुए हमने अभी तक नहीं देखा है। बेहतर ये होता कि अगर ये ऑल पार्टीज डेलीगेशन आती जिसमें अपोजिशन के लीडर भी होते, वो भी आते, और सबसे पहले यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ के जो 3 वज़ीर आला रह चुके हैं कश्मीर के, उनसे बात होती, आम लोगों के साथ बात होती, तो ये जो डेलीगेशन वगैरह ये सिलेक्टेड ये नहीं होनी चाहिए थी। सर हम तो ये चाहते थे कि ये सभी मिनिस्टर जो है, ये डेलीगेशन जो आया है, ये सभी आके यहाँ के जो नज़रबंद लीडर्स हैं उनके साथ बात करते, ताकि जो हमारे ये 370 का जो मसला उठा हुआ है इसका कोई तरीक़ाकार तो निकल आता, कोई हल तो निकल आता। लेकिन इन्होंने अलग अलग जगह पर ये जो मिनिस्टर लोग भेजे हैं, उनसे तो अलग अलग बात हो नहीं सकता। सभी आके एक जगह नज़रबंद मिनिस्टर्स को भी बिठा करके या जो बाहर हैं उनसे बिठा करके एक बारे बात करते तो शायद ही कोई हल निकल आता। सेंटर से डेलीगेशन आया है, इसमें हमें बताया गया कि 36 मिनिस्टर्स जो हैं जो कश्मीर में आएंगे, और हम सुनने में कोई ही आया कि सिर्फ 5 या 6 मिनिस्टर्स यहाँ पे कश्मीर वैली में आए हैं। यहाँ आप देखिए कि ये तो बहुत अच्छा कदम है कि सेंटर्स ने ये जो डिसीजन लिया कि वहाँ पे जाके लोगों के हालात और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, उनको देखा जाए। मगर बदकिस्मती की बात है 1996 से हमने यहाँ बीजेपी स्टार्ट किया है। 96 में भी हमारा ऑफिस यहाँ था। उस दिन से लेकर आज के दिन तक पहली बार सेंटर मिनिस्टर यहाँ आया, यूनियन मिनिस्टर यहाँ आया, जो 2 दिन यहाँ रुकेगा और हर एक डिप्टेशन से वो मिलेगा।
इस वक्त बारामूला डाक बंगले में वो मिल रहा है डिप्टेशनों से, और मुझे उम्मीद है आज के डेट में 36 मंत्रियों को यहाँ आना है और 25 तारीख की सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट में इनको वापस जाना है। तो जो भी मवाद यहाँ से इनको मिलेगा, यानी जो भी इनको डिप्टेशन अपना लिखत में देगा या हम लोग जो लिखत में देंगे, वो 11 बजे मोदी जी के टेबल पर होगा। और उधर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कश्मीर आवाम के हुकूक पर कोई भी डाका नहीं डाल सकता। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जायदाद और नौकरियों से मुताल्लिक़ हुकूक बिल्कुल महफूज हैं और उन पर कोई डाका नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि शरारती नासिर की जानिब से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुश्तैनी बाशिंदों की जायदादों और नौकरियों पर दूसरी रियासतों के लोग काबिज होंगे, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वादी कश्मीर में मुस्बित तब्दीलियाँ आ रही हैं और सभी इलाके तेज़ी से नॉर्मलसी की तरफ गामजन हैं। वाज़ेह है कि 21 जनवरी के रोज़ मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर का दौरा किया था और जिस तरह का लोगों को बेवकूफ़ बना करके इस सरकार ने एक झूठ का झुंझुना दिखाया, तो वो झूठ का झुंझुना अब पूरी तरह से हिल रहा है, डुल रहा है। सर, आपके जम्मू दौरे में आप लाल चौक भी गए जहाँ पे लोग आपसे मिले। श्रीनगर देखिए, 370 के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की 370 से ज़्यादा समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है। और जो एक करप्शन की दीमक थी, भ्रष्टाचार की दीमक थी, जो लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रही थी, लोगों के हितों को जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, आज जो है वो लोगों को इस बात का यकीन और एहसास है कि ये जो बदलाव है उनकी ज़िंदगी में बेहतरी की गारंटी बन गया है। लोगों से हमारी मुलाकात हुई, गाँवों में लोगों से हम मिले, बर्फीले पूरे हर वक्त भारी बर्फबारी हो रही है, पूरे सड़कें, पूरे रोड जो है वो बर्फ़ से भरी हुई है। उसके बावजूद भी मीलों से दूर दूर से लोग गांव में आए, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वहाँ बैठ करके उनसे अलग अलग संगठनों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रतिनिधियों से उनके सरोकार के बारे में। लेकिन एक चीज़ का सब में विश्वास, उनकी आंखों में विश्वास हमने देखा, उनकी बातों में विश्वास देखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव उनकी ज़िंदगी की बेहतरी की गारंटी बनेगा। और उनको यकीन, ज़बरदस्त यकीन उनके अंदर दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ जो करप्शन के ख़िलाफ़ एक बड़ी चोट वहाँ पर उन लोगों को लगी है, जो लोग कि आज तक जो है वो बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ और जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तक़रीबात के लिए सिक्योरिटी के कड़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यौम जमहूरिया की तक़रीबात के इनेक़ाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जहां जम्मू लेह में होने वाली सबसे बड़ी तक़रीबात में पहली मरतबा लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और राधाकृष्ण माथुर परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर बखुसूस वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में जंगजुओं की सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए तलाशियों और गश्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, जबकि LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर दूरंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौजी एहलकारों को अलर्ट हालत में रखा गया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के दोनों दारुल हुकूमतों में होने वाली तक़रीबात के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कांग्रेस के तमाम तर कायदीन ने मुल्क को जोड़ने का काम किया है, लेकिन आज की मौजूदा
बरसरकार पार्टी मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है। जी अमीर ने आज जम्मू में निकाली गई रैली में शिरकत की, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज पेश किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से बख्शी नगर जम्मू तक रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेसी कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जी अमीर ने बीजेपी की कौमी और जम्मू कश्मीर के तई अपनाई जाने वाली पॉलिसियों को तोड़ने वाली करार दिया। परम आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी अमीर साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गवर्नमेंट ने मंजूर किया और ये मैं जानता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट का हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान और उनको सम्मानित किया इस तरीके से। तो मैं ज्यादा ना देखिए, आज पूरा देश सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मना रहा है और सुभाष चंद्र बोस 1897 में पैदा होकर 1945 में वो इस दुनिया से चले गए एक क्रैश में, मगर जो उनकी जीवनी रही, जो उनकी जवानी रही, जो उनकी ज़िंदगी रही, वो उन्होंने पूरी हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने की लड़ाई में अपनी सरफ की। सुभाष चंद्र बोस एक बहादुर देश का सिपाही था, फ्रीडम फाइटर था। उन्होंने कांग्रेस प्लेटफार्म से महात्मा गांधी जी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, शास्त्री जी के साथ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ उस फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जय हिंद नारा ये कहकर पैदा किया कि देश उस वक्त जो था उनको जोड़ने का काम किया और उन्होंने हर प्लेटफार्म पर अंग्रेज़ों से फाइट करके मुल्क को आज़ाद किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे 1938 और 1939 में, और आज उन फोर्सेस को हम याद दिलाना चाहते हैं जिनका आज़ादी के उस मोमेंट में कोई योगदान नहीं रहा। अगर थे भी कुछ लोग वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए, वो सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत के पॉलिसीज़ को विरोध करने वाले लोग। और आज़ादी के बाद भी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को लिया, जोड़ने का काम किया, आज जो हुक्मरान पार्टियां हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो सुभाष चंद्र बोस के उन पॉलिसीज़ के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन से था, उस सोच को इससे आगे ले जाने की ज़रूरत है। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी और जितने भी हमसे सोच रखते हैं लोग, वो सारे आज सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी को याद करते हुए देश के लोगों को, देश के नौजवानों को एक नई लड़ाई, देश को जोड़ने की एक आह्वान कर रही है। और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों तक लड़ेगी, जब तक उन ताकतों को कमज़ोर नहीं किया जाएगा जो देश को तोड़ने में, बांटने में लगेगी। उधर भारत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक की मदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने कहा है कि दो तरफा मामलात पर जो भी मुबाहिसे होंगे वो सिर्फ हिंद पाक के बीच होंगे। याद रहे कि दावोस इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान मसले कश्मीर उठाया था, जिसके जवाब में वज़ारत ख़ारजा हिंद के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि हमने पहले भी कश्मीर मामले पर अपना मौक़िफ़ बता दिया था कि इस मामले में किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मसले कश्मीर पर होने वाली बातचीत शिमला मुआहदे और लाहौर एलामिया के दायरे में की जाएगी, लेकिन अब यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो दो तरफा मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाएं।
बरतरफ किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे के DSP देवेंद्र सिंह को जम्मू में NIA की एक खुसूसी अदालत में आज पेश किया गया है। देवेंद्र सिंह के साथ दहशतगर्दों और उनके साथियों को भी अदालत में पेश किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द के भाई इरफान को भी NIA की अदालत में पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक इन 5 अफराद की तफ्तीश करने के लिए NIA ने अदालत से 15 दिनों की तहवील मांगी है। NIA ने इन 5 मुलजिमीन को ट्रांजिस्टर रिमांड पर कोलगाम से जम्मू लाया है। याद रहे, साबिक पुलिस अहलकार देवेंद्र सिंह दो दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर से फरार होने के लिए मदद करते हुए पकड़ा गया था। और उधर पामपुर खरियों में 48 घंटों से जायद जारी रहने वाली इनकाउंटर में 2 सिक्योरिटी एहलकारों और एक्सकरियत पसंद की जान चली गई है। तफसीलात के मुताबिक खरियो पामपुर में गुज़िश्ता शब ऑपरेशन ड्रू के जाने के बाद आज सुबह दोबारा शुरू किया गया। आपको बता दें, खरियो पामपुर में आज दिन भर फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम और मुश्तबा इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया गया था। ख्याल रहे कि जनवरी खरियो पामपुर में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ मिलने वाली खुफिया इतला के बाद यहाँ फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि 21 जनवरी के दिन एक पुलिस एहलकार और एक फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गए थे, जबकि 22 जनवरी को एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया था। आगे नाज़रीन आपको लिए चलते हैं जनूबी कश्मीर, जहां इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो शबनम, सबसे पहले खरियो पामपुर में हुई झड़प से मुताल्लिक़ बताएं कि क्या ताज़ा सूरत हाल है, वहाँ की क्या तफसीलात है? देखिए, 21 जनवरी को जो कॉर्डन किया गया था जंतराग खरियो पामपुर का, जहां फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे कुछ अस्करियत पसंद छुपे बैठे हैं, जिस दौरान दोनों का आमना सामना हुआ और फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक फौजी एहलकार एक पुलिस एहलकार के साथ साथ दूसरे दिन एक अस्करियत भी जाँ बहक हुआ। तो जाहिर सी बात है 3 हलाकतें इसमें हुई है। जहां शुबा था फोर्सेस को कि मजीद कोई अस्करियत पसंद इलाके में हो सकता है, जिसकी वजह से आज भी पूरे दिन ये जो शाम तक यहाँ पे मुहासरा रहा, तलाशी कार्रवाई रही, लेकिन बाद में जब फोर्सेस को ये शुबा हुआ कि अब यहाँ पे उन मकामात जहाँ उनको शुबा था कि यहाँ हो सकता है कोई अस्करियत पसंद, उसकी जो तलाशी ली गई वहाँ उन जगहों की, तो उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अब कॉल ऑफ किया गया है। अब ये ऑपरेशन 3 दिनों के बाद लगभग खत्म किया गया है। जी। अच्छा, मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे के क्या असरात नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, जम्मू कश्मीर का दौरा मरकजी वज़रा कर रहे हैं, जहां जम्मू डिवीजन में पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, रामबन,
या मजीद कुछ इलाकों में ये वज़रा दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वहीं पर वादी कश्मीर के कई इलाकों, खासकर यहाँ सिर्फ 3 अजला चुने गए हैं, चाहे गांदरबल हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, और खासकर बडगाम का भी दौरा किया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह लोगों की जो उम्मीदें हैं या उनको जो उम्मीदें बढ़ा रहे हैं ये वज़रा, तो जाहिर सी बात है अगर ग्राउंड पे सिचुएशन बेहतर नहीं होगी या अगर ये होती है ये सिचुएशन बेहतर, जो लोगों को मसाइल हैं, बर्फबारी के बाद जो मसाइल हैं, बिजली के जो मसाइल हैं, सड़कों के, रोजगार के, अगर ये मसले हल होते हैं या कहीं पे उनको उम्मीद की जो किरण आज उनको ये दिखा रहे हैं कि हम हैं, अगर ये बेहतर करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो देखने में ये भी आ रहा है कि जिस तरह ये जितने भी मरकजी वजीर यहाँ पे आए हैं, इतनी भीड़ लोगों की भी नहीं होती है, या उन इलाकों में भी, खासकर अगर जनूबी कश्मीर की बात करें, यहाँ अनंतनाग है, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, जो इफेक्टेड एरिया, मिलिटेंसी हिट एरिया जिसको कहा जाता है, यहाँ अस्करत का ज्यादा रोल रहा है। अगर इस इलाके में इन वज़रा का आना नहीं होता है तो जाहिर सी बात है बहुत से सवालात उठते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोग रहते हैं, इस इलाके में भी लोगों को मसाइल हैं। इन इलाकों के मसाइल आखिर कौन हल करेगा? क्या आप यहाँ आना नहीं चाहते हैं? क्या आपने किसी ऐसे नजरअंदाज इस इलाके को किया है? ये सवालात है जो मरकजी जो वज़रा है उनके दौरे के हवाले से उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो कह रहे हैं, ये जहां भी लोगों से मिलते हैं और ये कह रहे हैं कि 370 हटाए जाने के बाद जो है अब तरक्की होगी, इससे पहले जो सरकारें रही हैं इस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। तो अब देखना यह है कि क्या ये डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, ये कर पाएंगे? अगर बेहतर होता है तो जाहिर सी बात है लोग खुश भी होंगे। जी, शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने कहा है कि मरकजी वज़रा का दौरा महज दिखावा है और इसमें मुंतखब लोगों से ही मुलाकातें हो रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह 370 हटाए जाने के बाद अभी भी बहुत सी सियासी कदावर शख्सियत जो भारत नवाज जिन्हें कहा जाता था, जिन पर अलहदगी पसंद हमेशा उंगलियां उठाते थे कि ये लोग ऐसे हैं जो उनके जो मूवमेंट चल रही है उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको वो दो टोक अल्फाज में ये कह रहे थे कि ये दिल्ली नवाज है, दिल्ली को पसंद करने वाले लोग हैं। अब वो दिल्ली के पसंद करने वाले जो लोग हैं वो आज बंद है, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। उनको मिलने, जिस तरह कई लोगों ने कहा कि उनसे कम से कम मुलाकात होती, उनसे बातचीत होती, या जो दीगर पार्लियामेंट मेंबर्स है अपोजिशन के उनको साथ लाया जाता। और जो शिवसेना की आपने बात की, शिवसेना का भी यही कहना है कि ये सिलेक्टेड, उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिलेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के होते हैं या दूर दराज इलाकों के ऐसे लोग होते हैं जिनको चुन कर लाते हैं। तो ये सवालात हैं, इस घेरे में तो है ये दौरा। जी, मिलना हो तो सभी से मिले या फिर आम पब्लिक से भी मुलाकात करें, आवाम से भी मुलाकात जरूरी थी। यौम जमहूरिया और जी क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, आपका यही कहना है कि जब मिले तो सबों से मिले, क्योंकि सभी लोग देशवासी जिन्हें कहते हैं जमहूरी मुल्क में हर किसी का हक है, हर कोई मिल सकता है, बोल सकता है, हर एक की राय देखनी है। और अब सिलेक्टेड लोगों से अगर मिलते हैं, अगर ये इल्जामात लगते हैं तो बड़े सवालात हैं। बिल्कुल सही है। यौम जमहूरिया और मरकजी वज़रा के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात की क्या सूरत हाल है? देखिए, अब यौम जमहूरिया जो है ये बहुत नजदीक है, इतवार के दिन 26 जनवरी है। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। खासकर वादी कश्मीर की अगर बात करें तो हर जो भी हसास मुकामात है वहां पे सिक्योरिटी में इजाफा किया जा रहा है, जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है, कहीं नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो जाहिर सी बात है पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो या खासकर वादी कश्मीर, उसमें भी साउथ कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि ये जो ऐसा तरीके से ये जो यौम जमहूरिया है ये इक़्तिदाम पज़ीर हो। ठीक है शबनम, आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहेंगे कि बर्फबारी के बाद किस कदर अवामी मसाइल हल किए गए हैं वहाँ पर? बर्फबारी के बाद अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को मसाइल है। गुरेज में भी आज फौज ने 2 मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्होंने एयरलिफ्ट उनको किया। तो जाहिर सी बात है ये दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ के लोगों को मुश्किलात है अभी भी। अब कस्बाजात जो है वहाँ लगता है कि जिंदगी मामूल पर है, लेकिन कस्बाजात से दूर दराज जो इलाके हैं जो जुड़ते हैं इन कस्बों से, तो जाहिर सी बात है उन इलाकों में अगर देखें
तो अभी भी जिंदगी जो है मामूल के मुताबिक नहीं है, और वहाँ भी गली कूचे ऐसे हैं, सड़कें हैं, ड्रेनेज नाकिस है। और ये भी देखा गया है जहाँ शहर श्रीनगर आज लगता है कि अब बर्फ हटाई गई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश क्या होती है, 1 घंटे 2 घंटे बारिश क्या लगातार होती है, तो शहर श्रीनगर पूरा हमें झील नजर आ रहा है, और ऐसा महसूस होता है शायद झील में ही लोग रहने गए हैं। तो ये नाकिस कारकर्दगी जो है वहाँ, अगर इंतजामिया की बात करें तो ये ऐसी सूरत हाल है जो जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, क्योंकि शहरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर का दिल है। जितना खूबसूरत ये रहे उससे बेहतरी देखने को मिलेगी। बस दीगर आप पानी जब सर से ऊपर जाता है तब आप कुछ करना चाहते हैं, बेहतर ये है कि आप तब करें जब अगर आगे चलकर कोई, जिस तरह 2014 में फ्लड आया था, या जब बर्फबारी होती है, कुछ बारिशें 2 घंटों या 3 घंटों के बाद हम देखते हैं कि पूरा लाल चौक या शहरी श्रीनगर डूब जाता है, तो ये शर्म की बात है। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत शबनम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शबनम फयाज हमें रास्त वहाँ से गुफ्तगू कर रहे थे, हालात से आगाह करवा रहे थे। अभी खबरों की तरफ हम देखते हैं आगे की कि डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट चेयरमैन गुलाम हसन मीर और साबिक PDP लीडर मोहम्मद विलाद मीर ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। गुलाम हसन मीर ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कश्मीर में इंटरनेट खिदमात को फौरी तौर पर बहाल करे, जबकि PDP के साबिक लीडर मोहम्मद विलाद मीर ने PDP सरबराह को भी तनखीद का निशाना बनाया है। इधर की तरफ आ रहे थे, वहाँ एक बैनर लेके लड़का आया था, वो कहता था कि वी वांट इंटरनेट, यानी ये डिमांड यहाँ भी है, कश्मीर के अंदर भी है। इंटरनेट चालू होना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, कल कुछ चैनल्स में ये आया कि सिरनावादी के कुछ जिलों में इंटरनेट शुरू हो गया, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक तो ये ऑन ग्राउंड शुरू होना चाहिए, और कहा था 400 हम सेंटर्स कायम करेंगे, वो भी शुरू नहीं हुए। तीसरा हमारा मुतालबा है मीडिया फ्रेटर्निटी यहाँ भी और कश्मीर की जो है, दे आर मोस्टली इफेक्टिव, उनकी लाइनें लगी होती हैं DCR से कहीं पे नेट खोलने की। गवर्नमेंट को चाहिए वो पूरी तो सिक्योरिटी रीजन की वजूहत अगर है वो खुला नहीं छोड़ सकते हैं नेट, लेकिन ब्रॉडबैंड मीडिया पर्सन्स, बिजनेस पर्सन्स रिलेटेड टू टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल वाले, हाउस बोट वाले, जो इससे जबरदस्त मुतासिर हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, अभी कैसे ये बात फैल गई है मुझे मालूम नहीं। जैसे मीर साहब ने अभी क्लियर किया, हम जब गवर्नर साहब से मिले, वी मेट हिम इंडिविजुअल लेवल। हम एक्स मिनिस्टर्स उसमें कुछ थे, एक्स लेजिस्लेटर्स थे, 8 लोग हम उनसे मिले। तो थर्ड फ्रंट की बात अभी कोई ऐसी बात नहीं है। थर्ड फ्रंट सब कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन वहाँ पे हमने जो मुतालबात के लोगों की मुश्किलात जो है, खासकर वादी कश्मीर जो जिन मुश्किलात से लोग गुजरे, उन मुतालबात को हमने गवर्नर की नोटिस पे लाया। तो थर्ड फ्रंट की बात कहीं नहीं है। अब थर्ड फ्रंट कुछ लोग कहते हैं थर्ड फ्रंट बन रहा है, जब वो 5 या 10 या 20 आदमियों को देखते हैं थर्ड फ्रंट बन रहा है। ये सब एक मिनट, मुझे और बात देखिए, आज दफातर सारी जम्मू में, समर्स में दफ्तर और इक़्तिसादी तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका से मुदाखलत करने की अपील की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के साथ जंग जैसे कशीदा हालात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को दोनों जोहरी हथियार वाले ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए काम करना चाहिए। रोज़नामा डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर खान ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में मुनक़्क़द आलमी इक़्तिसादी
फोरम WEF के इजलास से अलग बुध को बैनुल अक़वामी मीडिया कौंसिल के दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। पाकिस्तान ने हर किस्म का वाहिड साथ ले जाने की सलाहियत रखने वाले गजनबी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। राइटर्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक हर किस्म के वाहिद साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। गजनबी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मकसद और रात के वक्त ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तजुर्बे के वक्त DG स्ट्रेटेजिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच भी मौजूद थे। उसके अलावा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस चेयरमैन और दीगर सीनियर ऑफिसरान ने भी मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मसलह अफवाज के सरबराहान को मुबारकबाद पेश की है। और उधर करगिल में मामानी फेस्टिवल में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। तकरीबन 19 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मामानी फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हिमालयन हेरिटेज कल्चरल फाउंडेशन ऑफ यूथ एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी, महकमा सियाहत और दीगर के इश्तराक से सालाना फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मुकामी मुख्तलिफ किस्म के पकवान का मुजाहरा किया गया। मुकामी कायदीन और अहदेदारान ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। तीसरा आपको रानी शमा अली चंदन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के SSP जनाब डॉक्टर विनोद कुमार साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मुफ्ताज साहब, हमारे ऑल इंडिया रेडियो के
जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं, और हमारे यहाँ की अनिशेमा, रानी शेमा, और जितने भी यहाँ पे जो रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स आए और यहाँ के बीडीसी साहब। तो नाज़रीन, जिस तरह हर साल ममानी का फेस्टिवल जो कारगिल में मनाया जाता था, पिछले साल जो मुल्क में मनाया गया था, इस साल उनको शरगोल हायर सेकेंडरी पे मनाया गया है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के इलाके से ऐसे कुछ पकवान को लाए हुए थे जो पुराने ज़माने में जो हमारे लोग उसको बना के किस तरह जीते थे, किस तरह खाते थे, क्या चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसी चीज़ों को आज यहाँ पे इवेंट में निकाला गया, जिसको हमारे करगिल के ममानी फेस्टिवल से माना जाता है। पोटी के लिए करगिल लद्दाख से नासिर हुसैन जैदी। अब बात करते हैं मौसम की। सख्त तरीन सर्द मौसम चिल्ला कलान अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच चुका है। वादी कश्मीर में रात के औकात मौसम सर्द खुश्क बना हुआ है। जुमेरात के रोज़ वादी के बेशतर हिस्सों में हल्की धूप भी निकली, लेकिन वहीं कहीं एक हिस्सों में ऐसे ताज़ा बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने वादी में 23 से 28 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। एजी के मशीर के शर्मा ने आज गुलमर्ग का दौरा किया है। के शर्मा ने यहाँ विंटर गेम्स के इनेकाद के बशमूल शोबे हयात के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ इंतजामात का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते से लेके सारे यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर साहिबान पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके लिए आ रहे हैं। अभी मैं भी जम्मू में था, उधर कोरमंडल में एक मंत्री जी गृह मंत्री साथ में था। अभी परसों यहाँ पर हमारे MHRD के मिनिस्टर आ रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मैं उनके साथ में रहूँगा। रविशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं कल बारामूला में। और आइडिया ये है कि पब्लिक को क्या क्या डेफिशिएंसीज पास्ट में रही हैं उसको मिनिस्टर लोग खुद जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, उसके बारे में। और इसलिए ये सारे विजिट हो रहे हैं बड़े कंसंट्रेटेड रूप से, और हमारे सारे सेक्रेटरी साहबान और हम सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं। मेरा विजिट मैं टूरिज़्म का भी मैं चार्ज देखता हूँ। गुलमर्ग हमारा एक बहुत अच्छा स्पॉट है, इस पर बड़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी है, कुछ टूरिस्ट भी आ रहे हैं। स्कीइंग रिलेटेड एक रिव्यू करेंगे कि क्या यहाँ पर अथॉरिटी में काम कैसे होता है विंटर में, और भी टूरिस्ट को लाने के लिए काफ़ी लोग इस समय क्वेरीज आ रही हैं। किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? अगर सियाहत की बात करें सर, सियाहती शोबे को फ़रोग देने के लिए किस तरह के इकदाम आगे उठाए जा रहे हैं? आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने किया बारामूला का दौरा, तामीरी प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह, कहा कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी इंटरनेट किया जाएगा बहाल। दिगर मरकजी वज़रा का दौरा जम्मू कश्मीर जारी, श्रीनगर, गंदरबल और रामबन में इजलासों का किया गया है तमाम।
कांग्रेस के कायदीन ने मुल्क को जोड़ने का काम किया, लेकिन आज हुक्मरान पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। जीए मीर की बीजेपी पर तनकीद। जम्मू में सुभाष चंद्र बोस की याद में निकाली रैली। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं वसीतर बंदोबस्त। मरकजी वज़रा के दौरे और यौम जमहूरिया के पेश नज़र फोर्सेस हैं अलर्ट। मज़ीद ताज़ा बर्फबारी के महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। बुनियादी सहूलियात से की अदम फराहमी पर कई एक हिस्सों में एहतजाज। इसी के साथ ही कश्मीर बुलेटिन ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।